Hey, hello everyone. Once again, welcome back on the channel of Learn English with Sonali, and I am Sonali. So, guys, I hope that you all are doing great. A lot of English language learners face this problem, saying that they try to speak in English language, but when they try to speak, they say that words do not come to my mind. I cannot express my thoughts in English language. I cannot speak without hesitation in English language. A lot of English language learners face this problem. So today in this video, I am going to share with you one technique which will help you to learn new words, to remember them, and you can and of course I will share with you that how to use those words while practicing an English language. So make sure that you watch this video till the end, because you are going to get solution to resolve this problem, that how can you express your thoughts in English language, how to you are going to know answer that how to overcome this problem if you feel that words do not come to your mind when you speak in English language. So watch this video till the end, because I am going to show you with an example that how can you learn new words, how can you remember words, and how can you use those words while practicing an English language. I have used this technique during my journey uh, to improve my vocabulary, to learn new words, and to express my thoughts in English language. So, let's get started with our today's topic. So, I have this screen, okay? So, you can see this screen, okay? So, on the screen, you can see that there is a small story which I wrote, okay? And its name is Successful Story of Ima. So let me tell you that what am I going to do. I am going to read this paragraph of that story, okay? And I am going to show you that how can you learn new words by reading in English language, okay? And by reading this paragraph of that story, you are going to learn new words, okay? So let's start. So first sentence is that Ima grew in a small town with big dreams. Okay, Ima is the name of that girl, and she grew in a small town with big dreams. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईमा ग्रीव अप. तो ग्रीव अप का मीनिंग क्या है? टू प्रोग्रेस फ्रॉम चाइल्डहुड टूवर्ड्स एडल्टहुड. मतलब क्या है कि वो उसी विलेज में बड़ी हुई. ओके, छोटी से वो वहीं पे बड़ी. इन अ स्मॉल टाउन. टाउन का मतलब है शहर. ओके, विथ बिग ड्रीम्स. बड़े सपने लेकर वो एक छोटे से शहर में बड़ी हुई. ओके, तो इसका मतलब ये है. तो इस सेंटेंस में हमने नया वर्ड सीखा, ग्रीव अप. ओके, टाउन ये वर्ड सीखा हमने. टाउन मतलब शहर, ड्रीम्स मतलब सपने. ओके, फ्रॉम अ यंग एज शी वॉज पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. फ्रॉम अ यंग एज शी वॉज पैशनेट. पैशनेट का मतलब है उत्कट भावना या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके, उस वर्ड का ये मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग. देखिए, अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इमिडिएटली जाएंगे डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग सर्च करेंगे, और हमें वहाँ पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है. ओके, अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. टेक्नोलॉजी तो हम इस वर्ड को जानते ही है, तंत्रज्ञान. एंड इनोवेशन, इनोवेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज. मतलब नया कुछ खोजना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मेथड हो सकती है, कोई नई आइडिया हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है जो नया हो. इन्वेंशन, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं. ओके, तो उसका मतलब ये है. ओके, हर फैसिनेशन विथ कंप्यूटर स्टार्टेड
when her father brought home an old computer from work. उसके फादर ने उसके लिए अ, उसके फादर ने घर पे एक पुराना कंप्यूटर लाया और उसका मोह उस कंप्यूटर के लिए इतना बढ़ा कि वो अगले सेंटेंस में आपको पता चलेगा। ईमा स्पेंट काउंटलेस आवर्स टिंकरिंग विद इट, teaching herself how to code by watching online tutorials and reading books from the local library. अब उसमें आगे क्या वर्ड्स है? ईमा स्पेंट काउंटलेस आवर्स, मतलब उसने असंख्य, काउंटलेस का मतलब है असंख्य, बहुत सारे घंटे कंप्यूटर पे स्पेंड किए। टिंकरिंग, टिंकर का मतलब है ट्राई टू रिपेयर और इम्प्रूव, मतलब वो कुछ भी नहीं जानती है, वो खुद से ही सीखने की कोशिश कर रही है, खुद को ही सिखाने की कोशिश कर रही है, रिपेयर करके या फिर इम्प्रूव करके नॉलेज लेने की कोशिश कर रही है, देख रही है उसे वो कैसे चलता है कैसे नहीं। टीचिंग हर सेल्फ हाउ टू कोड बाई वॉचिंग ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन वीडियोस वगैरह होते हैं। ट्यूटोरियल्स मतलब सेशन बाय ट्यूटर, जो सिखाया जाता है। ट्यूटोरियल्स मतलब टीचर्स सिखाते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो ट्यूटोरियल्स देख रही थी और खुद को सिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कंप्यूटर चलता कैसे है। एंड रीडिंग बुक्स फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी। लोकल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब ग्रंथालय, तो लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स वगैरह पढ़ती थी। इससे उसे ये पता चलता था कि वो कंप्यूटर चलता कैसे है। ओके, तो अब ये छोटा सा पैराग्राफ है। ओके, अब इस छोटे से पैराग्राफ में हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। ग्रीव अप सीखा, टाउन सीखा, बिग ड्रीम्स। अगला वर्ड है पैशनेट। पैशनेट मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज़ के लिए, वो करना है मुझे, वो खुशी से कर रही है हम, ऐसा मीनिंग। इसमें हमने इनोवेशन नया वर्ड देखा, फैसिनेशन देखा। फैसिनेशन मतलब मोह किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए आकर्षण होना। वो उस चीज़ को लेके फैसिनेट थी, मोह मोह था उसके मन में कि वो कंप्यूटर चलता कैसे, वो देखना चाहती थी। ओके, अगला वर्ड है काउंटलेस, उसके आगे का वर्ड है टिंकरिंग। ओके, ट्यूटोरियल्स, लाइब्रेरी। तो एक पैराग्राफ में हमने कितने सारे वर्ड सीखे। कितने सारे वर्ड सीखे हमने। इनमें से कुछ वर्ड्स हम पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन अगर कोई नया वर्ड है तो वो भी हमें पता चला, जैसे कि टिंकरिंग है, काउंटलेस है, जैसे कि फैसिनेशन, पैशनेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड इसमें हमने देखे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखो, जब हम कुछ पढ़ते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जब हम रीड करते हैं ना, तब हमें वो छोड़ के जाना नहीं होता। वो डिफ़िकल्ट वर्ड अगर कोई हमने देखा, सुना, मतलब रीड किया, तो हमें क्या करना है कि हमें इमीडिएटली डिक्शनरी में जाना है और उस वर्ड का मीनिंग सर्च करना है। अब आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे ये एक लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एप्लीकेशन दिख रहा होगा, ये देखो, ये इस पे मैंने क्लिक किया। ये क्या आया यहाँ पे? ट्यूटोरियल्स। ओके, वो डिक्शनरी का साइन है। ओके, ये एप्लीकेशन अभी मैंने ये क्लोज किया। ये ऊपर लेफ्ट साइड में मेरे मैं जो भी स्क्रीन छोटा सा दिख रहा है जिसमें मैं नज़र आ रही हूँ, उसके नीचे ये आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन, एक छोटा सा बुक का भी साइन है उस पे, वो डिक्शनरी का एप्लीकेशन का साइन है। ओके, वो मैंने एक्टिव करके रखा है, इसीलिए वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसकी हेल्प से मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं कुछ रीड कर रही हूँ, ओके, और सपोज़ मेरी मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया जो है किसी न्यूज़ के बारे में। ओके, तो मैंने उस पे क्लिक किया, एंटर किया, उस पेज पे गई मैंने वहाँ पे कुछ रीड किया, उसमें मुझे गलत आई मीन कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आया, तो मैं वो कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद में मैं इस डिक्शनरी के साइन पे क्लिक करूँगी, तो मुझे उस वर्ड का मीनिंग वहाँ पे नज़र आएगा। तो ऐसी मैंने सेटिंग करके रखी हुई है। तो ये मैंने आदत लगा ली है खुद को, जब से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए शुरुआत की, तब से लेके अभी तक वो आदत है मुझ में। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे रीड करते वक़्त। तो मैं क्या करूँगी कि मैं
इमीडिएटली डिक्शनरी में जाऊंगी और उसका मीनिंग सर्च करूंगी। उसका मीनिंग सर्च करने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ओके, अब मैंने इसे समझ लिया, अब मैंने इसे समझ के साथ पढ़ा, इसीलिए मुझे ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई। ओके, तो अब हमने ये वर्ड्स लर्न कर लिए, हमें समझ में आ गया। ओके, इस तरीके से आपको डिक्शनरी हेल्प करती है कि आपको नए वर्ड सीखने हैं। अब तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, इंग्लिश में भी मीनिंग वहाँ पे मिल जाता है। ये जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश है। ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से है। आप अगर चाहे तो आप जो भी जिस लैंग्वेज में आप मीनिंग देखना चाहते हैं वो आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक आदत पड़ जाती है कि अगर आप नए वर्ड्स कोई सीखना चाहते हो तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड देख लो, तभी के तभी आप डिक्शनरी में जाओगे और उसका मीनिंग सर्च करोगे, आप समझोगे। ओके, अब ये हो गया नया वर्ड लर्न करने के बारे में। ओके, तो इससे हम रीडिंग के माध्यम से बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है बाकी स्टेप्स की तरह, जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे। ओके, मेरे बहुत पहले की वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप रीडिंग करिए जिससे आप नए वर्ड सीख सकते हैं। और जब हम नए वर्ड सीखते हैं तब वो हमारी मेमोरी में फिट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम वो वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए नेक्स्ट टाइम हम अगर इंग्लिश में हम बात करें तो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमें ये वर्ड्स हमने सीखे तो सही, लेकिन अब हम इसे याद कैसे करें, याद कैसे रखें, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम यूज़ करते वक्त हम इजीली हम वर्ड्स को यूज़ कर पाए इंग्लिश में बात करने के लिए। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। ओके, तो अब ये कुछ वर्ड्स है आपके सामने स्क्रीन पर, और ये वर्ड्स है उस पैराग्राफ से मैंने लिए हुए। अब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है। ओके, उसमें मैंने कुछ वर्ड्स सीखे, उनका मीनिंग जाना। तो अब मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में तो मैं क्या करूँगी, मैंने पहला वर्ड देखा ग्रीव अप, तो मैं वो ग्रीव अप का वर्ड लूँगी, और एक्चुअली एक फ्रेज़ है। ओके, और मैं ये वर्ड लूँगी और मैं क्या करूँगी कि उससे मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने इससे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ग्रीव अप मतलब श्रेया ग्रीव अप इन अ स्मॉल विलेज। ओके, तो वहाँ पे था इन अ टाउन, यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है श्रेया ग्रीव अप इन अ स्मॉल विलेज। ओके, तो इससे हम ऐसे क्या करेंगे कि वो उन वर्ड्स का हम यूज़ करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अगला वर्ड है ड्रीम। एवरी पर्सन हैज़ कैपेसिटी टू फुलफिल हिज और हर ड्रीम्स। हर इंसान में क्षमता होती है कि वो अपने सपने पूरे कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है लाइब्रेरी। ही गोज़ टू लाइब्रेरी टू स्टडी। वो स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता है। ओके, तो लाइब्रेरी का यूज़ करके ये सेंटेंस मैंने बनाया है। तो पैशनेट नेक्स्ट वर्ड है। आई एम पैशनेट अबाउट माई करियर। तो मेरे करियर को लेके मैं पैशनेट हूँ। ओके, तो ये सेंटेंस है। ट्यूटोरियल, यू कैन प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो अब हमने उस पैराग्राफ में जो भी नए वर्ड सीखे उसका इस्तेमाल करके हमने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए। ओके, तब हमें इससे क्या पता चला कि हमने पैराग्राफ रीड करते वक्त नए वर्ड सीखे। ओके, न्यू वर्ड सीखे हमने। और सेकंड हमने क्या किया, हमने उनका मीनिंग भी जान लिया डिक्शनरी में जाके, डिक्शनरी का यूज़ करके। ओके, और थर्ड हमने क्या किया, उन वर्ड्स को याद रखने के लिए हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते वक्त हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाएंगे अलग अलग तरीके के। ओके, तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। आप इन वर्ड्स को लेके अलग अलग सेंटेंसेस और भी बना सकते हो, चाहे वो कोई भी पैराग्राफ आप रीड करो, कोई भी बुक रीड करो, कोई भी पेज, आप एक पेज रीड कर लो हर रोज़, उसमें से आप नए वर्ड सीखो इसी तरीके से। और इससे क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। रीडिंग ही एक माध्यम है जो आपको हेल्प करेगी नए वर्ड सीखने के लिए।
ओके। और आप पढ़ते वक्त ही उन वर्ड्स का मीनिंग समझ लो और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो खुद से। आप लिखना नहीं चाहते तो दिमाग में ही आप वो प्रोसेस बना लो कि आपको क्रिएट करने हैं नए नए सेंटेंसेस, प्रैक्टिस करने के लिए कि उस वर्ड का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से नए सेंटेंसेस बना सकते हो। खुद से कोशिश करो। ओके। तो यही तरीका है जिससे आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए कि आप उन वर्ड्स को याद रखो, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करो। जब आप ये सेंटेंसेस बनाओगे ना, तब आप सोचने लगोगे कि आप ये वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होने लगेगी। ओके। तो मैंने ये डेमो करके आपको क्यों दिखाया कि आप किस तरीके से रीड कर सकते हो, किस तरीके से नए वर्ड सीख सकते हो। इसके पीछे की वजह ये है गाइस कि मैंने खुद ये टेक्निक इस्तेमाल की हुई है। मैं क्या करती थी कि मैं ऐसे ही रीड करती थी, कोई भी पैराग्राफ वगैरह मैं रीड कर लूँ, कोई भी बुक रीड कर लूँ, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड बुक हो सकती है या फिर कोई भी बुक हो सकती है जो आपको रीड करना पसंद हो। ओके। तो इस तरीके से मैं क्या करती थी, मैं भी रीडिंग करती थी, और रीडिंग के माध्यम से ही आप नए वर्ड सीख सकते हो। बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स ये कहते हैं कि मैं बोलने की जब प्रैक्टिस करूँ तो क्या होता है कि मैं ब्लैंक हो जाती हूँ या फिर ब्लैंक हो जाता हूँ, वर्ड्स ही नहीं आते मेरे माइंड में। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो तो यही एक सॉल्यूशन है कि आप रीडिंग करो, उसके माध्यम से नए वर्ड सीखो, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, और आप आदत डालो कि आप डिक्शनरी यूज़ करो जिसकी वजह से आप नए वर्ड सीखो। क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप डिक्शनरी की बुक लेके कैरी करो, इसीलिए आप एक छोटा सा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आदत डाल लो खुद को ये कि आपको कुछ ना कुछ रीड करना है, डिक्शनरी का यूज़ करना है। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आप अगर सुनो कहीं पे भी या फिर रीड करो तो इमीडिएटली डिक्शनरी में जाके मीनिंग सर्च करना है, और उन वर्ड का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस करते वक्त, या फिर कोई सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हो, इसके बारे में आप सोचो। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप सोचने लग जाओगे। तो यही तरीका होता है जिसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर मैं इंग्लिश में कैसे सोचने के लिए स्टार्टिंग करूँ, इस आंसर का भी सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने वर्ड्स बढ़ा सकते हो। तो गाइज़ ये टेक्निक मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसका इस्तेमाल करो इस टेक्निक का, तो आप अपनी वोकैबुलरी ज़रूर बढ़ा सकते हो। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ और आपके दिमाग में मेमोरी में वर्ड्स हैं, तो आप क्यों नहीं बोल पाओगे इंग्लिश में? ऑफ कोर्स यू कैन। I always say that for thinking in English language, we need to have words in our memory. And if you have words in your memory, then of course it's possible for you to express your thoughts in English language. You know, so it's of course possible. Okay, so this is the technique which I wanted to share with you. And guys, मैं अपनी ये जो टेक्निक है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया है। ओके, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव यूज्ड दिस टेक्निक ड्यूरिंग माय जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एंड guys, please try to implement these kind of techniques on yourself, and by using these kind of techniques you are going to improve your English language, because this is the thing which is going to help you, these techniques are going to help you to improve your fluency in English language. So I hope that this is going to be helpful for you, and please let me know your opinion in the comment section that what you are thinking. And if you want me to make video on any particular topic related to learning English language,
Let me know in the comment section and let me know your opinion that how much improvement you are seeing in yourself by using this technique. Okay, so that's it for today in this video. Let's meet in a next video with the new topic. Until then, bye bye.